defect. So there are two main defects in the refracting, that is astronomical telescope. One is the chromatic aberration and other is the spherical aberration. Now see here. First, I am going to tell you a spherical aberration. It arises due to the spherical nature of objective lens. Since in telescope, objective is of very big size. And why do we keep a very big objective? क्यों नहीं हम एक स्मॉल ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं? उसका रीजन क्या है कि if you take a very small objective, then what will happen? It will collect very few rays from the distant object. It will collect only very few rays from the distant object, and therefore this image A dash B dash will be highly diminished. It will be highly diminished. Okay? And it will not be bright also. So in order to collect the large number of rays from the distant object, it is taken bigger in size. ऐसे ये bigger in size लिया जाता है, पर जब इसका size bigger होगा तो इसके different parts का curvature क्या होगा? अलग अलग होगा. Different parts का curvature क्या होगा? अलग अलग होगा. Central portion will have greater radius of curvature, while the peripheral portion, अब ये समझ लो central portion क्या है और peripheral क्या है. देख लो ये क्या है? लेंस है. लेंस इस तरीके का होगा. इसका ये पार्ट तो क्या कहलाता है? सेंट्रल पोर्शन. क्यों? क्योंकि ये सेंटर के पास है. जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो पेरीफेरी के पास है. पेरीफेरी जिसको क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस. इसको क्या कहते हैं? पेरीफेरल पोर्शन. दोनों पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है. मतलब इस डॉटेड वाले पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग है और इस पेरीफेरल पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग है. अगर ये हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लें तो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा? n-1 into 2 टांग दिया है सर. n-1 into 2 upon r. आए सर? फोकल लेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा? This will be equal to r upon 2 into n-1. इसलिए अगर इक्विकॉन्वेक्स ले लें. So see here, since the different portions are having different radii of curvature, इसकी r1 ले लिया, इस पार्ट की r2. r1 क्या है? ग्रेटर है r2 से, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? सेंट्रल पोर्शन की फोकल लेंथ अधिक होगी, पेरीफेरल पोर्शन की फोकल लेंथ कम होगी. मतलब सेंट्रल पोर्शन की फोकल लेंथ विल बी मोर देन पेरीफेरल पोर्शन. इसलिए it will be more than peripheral portion. Because of this, what will happen? Now you can see here. ये एक क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है. यहां से आने वाली रेज क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज क्या है? दे आर पैरेलल. दिस इज द focal point of central portion, peripheral portion, and this is the focal point of central portion. As central portion, focal FO equals FO. FO क्या है? Focal point of objective. FOP means focal point of peripheral portion. Point of peripheral portion. And this is of central. हमने ऑलरेडी बताया सेंट्रल पोर्शन की फोकल लेंथ अधिक है. तो जो ये जो पैरेलल रेज जिस पर पड़ रही हैं, हम कुछ ऐसे दिखा देते हैं.
हमने तो केवल 2 दिखाई थी, पर बहुत सारी पड़ सकती। जो रेज सेंट्रल पोर्शन पर पड़ रही है उनकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। आए समझे? जो रेज पेरिफेरल पोर्शन में पड़ रही है उनकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी। मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट की कई इमेज यहाँ पर बन जाएंगी, और जब एक ही ऑब्जेक्ट की कई इमेज डिफरेंट पॉइंट्स पर बनेगी, देयरफॉर होल इमेज विल बिकम ब्लर्ड। होल इमेज विल बिकम ब्लर्ड। पूरी इमेज हमको कैसी दिखाई देगी? ब्लर्ड दिखाई देगी। आए समझे? वो सब ओवरलैप करने लगेंगी, जैसे एक इमेज ये, दूसरी इमेज ये, तीसरी इमेज ये, चौथी इमेज ये। आए समझे? क्योंकि हम तो ऐसे देख रहे हैं ना लॉन्गिट्यूडली, तो वो तो एक के ऊपर एक हमको दिखाई देंगी। इज क्लियर? सो व्हाट इज स्फेरिकल एबरेशन? Spherical aberration arises due to the spherical nature of the objective lens. Objective lens do not have a uniform curvature throughout. It don't have a uniform curvature throughout. Its central portion is having greater radius of curvature. Peripheral portion is having smaller radius of curvature. Due to this, focal length of central portion is more and focal length of peripheral portion is less. आए समझे? सेंट्रल पोर्शन की फोकल लेंथ तुम्हारी इतनी हो गई और पेरिफेरल पोर्शन की फोकल लेंथ केवल इतनी ही हो गई। Therefore, the image of the distant object forms at the different point. And when image of distant object will form in the different point, the image will become blurred. इमेज क्या हो जाएगी? ब्लर्ड हो जाएगी। अब जब ये अलग अलग पॉइंट पर बन रही तो आई लेंस भी क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस द इमेज एट द डिफरेंट पॉइंट्स, देयरफॉर ऑन द होल इट विल बिकम ब्लर्ड। तो एक तो ये स्फेरिकल एबरेशन है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग ए पैराबोलॉइडल मिरर। पैराबोलॉइडल मिरर, लेंस नहीं कर रहे हैं, पैराबोलॉइडल मिरर। ये एक कॉन्केव मिरर होता है। कैसा मिरर? कॉन्केव मिरर। पैराबोलॉइडल मिरर, इट इज द मिरर इन द शेप ऑफ कटोरा। यू कैन सी हियर, पैराबोलिक शेप जिसको कहते हैं, सबको मालूम। In place of objective lens, we use paraboloidal mirror. In the paraboloidal mirror, this is having same curvature. यहाँ curvature क्या होगा? होता तो parabolic shape में है, पर different portions का curvature same होता है। और जब curvature same होगा, so what will happen to their focal point? That will also be same. F equals to R/2 होता है मिरर में, तुमको मालूम ही है। आए समझे? तो जितनी भी रेज आएंगी पैरेलल, किसी भी पॉइंट पर पड़े, वो क्या होंगी? केवल एक ही पॉइंट पर आके मिलेंगी। आए समझे? ये ऐसे, ये ऐसे। मतलब इमेज कैसी बनेगी? इमेज विल फॉर्म एट ए सिंगल पॉइंट। So spherical, this defect of spherical aberration, in astronomical telescope can be removed by using a paraboloidal concave mirror, which forms the image of the distant object at one point. ऐसा। अब देखो दूसरा डिफेक्ट क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमेटिक एबरेशन। अब देख लो, एक चीज हम और भी बता दें। जब हम क्रोमेटिक एबरेशन डिस्कस कर रहे हैं तो हमने एज्यूम कर लिया कि स्फेरिकल एबरेशन नहीं, कर्वेचर के बारे में हम 1 मिनट के लिए भूल गए ना। देख लो क्रोमेटिक एबरेशन में क्या होगा? इट अराइजेस बिकॉज क्रोमेटिक मींस पर्टेनिंग टू कलर। क्रोमेटिक एबरेशन, it is the defect which is produced because of the color. It is the defect which is produced because of the color. हमको मालूम है
डिफरेंट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता, अलग अलग होता। म्यू फॉर वायलेट इज मैक्सिमम एंड फॉर रेड इट इज लीस्ट। I so as we know that focal length also depends upon mu, mu minus 1 into 2 upon r। so क्या हो जाएगा, डिफरेंट कलर्स की फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगी। हम देखेंगे यहाँ पर वायलेट की फोकल लेंथ कम होगी एंड रेड की फोकल लेंथ अधिक हो जाएगी। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है उससे आने वाली रेंज कैसी हैं, दे आर क्वाइट लाइट। क्यों, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। सो हाउ व्हाट टाइप ऑफ रेज आर कमिंग, व्हाइट लाइट रेज आर कमिंग। और जब ये व्हाइट लाइट रेज इस प्रिज्म से पास होंगी, इस ग्लास इस लेंस से पास होंगी, देन व्हाट विल हैपन, द रेज ऑफ, देखो देखो वहां पर उस तरफ ईंटा हमने रख दिया है ना। नाउ ऑल ऑफ यू वेट फॉर, so see here, since from the astronomical object white light rays are coming, when they will pass through the objective lens, what will happen, जब वो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होंगी तो डिफरेंट कलर की रेज डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगी। और होगा क्या, वायलेट कलर की इमेज तो यहाँ बन जाएगी, तुम देख सकते हो वायलेट कलर की रेज इमेज यहाँ बन जाएगी वायलेट कलर के फोकल पॉइंट पर, रेड कलर की इमेज यहाँ पर बन जाएगी। इट्स क्लियर, मींस द डिफरेंट images, different color images will form at the different point. Object is illuminated by the white light, but the different color images are forming at the different point, and therefore the final image will become blurred. आए समझे? तो ये दो मेजर डिफेक्ट होते हैं, पर ये डिफेक्ट जैसे ही हम इसको यूज करेंगे रिमूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्पर्सन मिरर में होता नहीं। डिस्पर्सन इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लेंस, डिस्पर्सन केवल यहीं पर होता। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्टिव मिरर यूज करेंगे, व्हाट विल हैपन, दिस डिफेक्ट विल बी रिमूव। सो दैट्स व्हाई the telescope in which the astronomical telescope in which the objective is not a lens, objective is a paraboloidal concave mirror, is called reflecting telescope, it's called reflecting telescope। तो